We have done मुझे so. विश्वास है कि ये Coupled with चर्चा wide-ranging structural reforms, भारत की inclusive ग्रोथ को growth, गति देने keeping में employment in mind, keeping मददगार women in सिद्ध mind, होगी। keeping the youth in mind. साथियों, Second, इस बार का ये कॉन्क्लेव we have demonstrated, Prime ऐसे Minister, समय में हो रहा and है laid a final nail on जब the दुनिया coffin के दो that बड़े रीजन democracy में and development युद्ध की स्थिति है। are asymmetric. ये India दोनों रीजन is a classic shining example, ग्लोबल perhaps the only इकोनॉमी के लिए example, where very और high खास rates of तौर economic पर growth have been achieved एनर्जी in a सिक्योरिटी के democratic लिहाज से framework. This debate बहुत therefore अहम है। stands settled. Third, in our इतनी adoption of बड़ी the cutting ग्लोबल edge of technology, अनसर्टेनिटी के in बीच leveraging the frontiers of सभी technology यहाँ while ensuring gainful द employment. इंडियन एरा The decisive presence of यानी so many भारत के global युग की चर्चा capability कर रहे centers, हैं। Prime Minister. In one year or दिखाता two है of over 1,600, कि आज भारत the पर sky is the limit. Based on artificial विश्वास intelligence, कुछ अलग ही these है। global capability centers which are present ये here दिखाता will है make a fundamental change in our कि ability आज to भारत leverage का the cutting edge आत्मविश्वास of भी technology and artificial intelligence कुछ विशेष coupled है। with inclusive growth. Fourth, साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग and मेजर recognizes इकोनॉमी है। that we are among the few countries आज भारत which are fully on GDP के course and हिसाब ahead से of fulfilling the फिफ्थ लार्जेस्ट obligations इकोनॉमी है। which we took upon ourselves हम on ग्लोबल global फिनटेक warming एडॉप्शन रेट and के climate मामले में change in an number orderly one है। transition to an era आज हम of स्मार्टफोन climate डेटा responsibility. कंजम्पशन के We मामले में recognize that this number will one entail a restructuring of हम agriculture, इंटरनेट about which यूजर्स you के have मामले spoken so में many times, on दुनिया our में food नंबर 2 systems, है। on changing दुनिया lifestyles, की करीब and of करीब course आधी reducing in रियल the टाइम process डिजिटल our ट्रांजैक्शन dependence on fossil fuel. आज भारत में हो रही है। Fifth, Prime आज Minister, भारत में it's recognized दुनिया का तीसरा that in more सबसे ways than बड़ा one, we स्टार्टअप represent the voice इकोसिस्टम of the global South. रिन्यूएबल And that एनर्जी कैपेसिटी they के मामले recognize में our भारत presence on the global नंबर stage 4 पर है। because in an increasingly अगर fragmented मैन्युफैक्चरिंग की world, बात करें तो भारत in an दुनिया का increasingly fragmented दूसरा world, सबसे बड़ा they मोबाइल believe मैन्युफैक्चरर that है। we could be an भारत important टू country व्हीलर्स और to ट्रैक्टर्स chart का a course out. सबसे बड़ा I'm always मैन्युफैक्चरर reminded when I hear of this. और In इतना the ही great नहीं, Mahabharata, भारत there is a great role. दुनिया का सबसे सारथी। युवा देश है। They recognize that perhaps it is India's दुनिया में turn तीसरा सबसे बड़ा to be a global साइंटिस्ट और Sarathi, टेक्नीशियंस का a charioteer, पूल भारत to be में able है। to maneuver these यानी complexities in a साइंस हो, fractured world of टेक्नोलॉजी geopolitics हो, and geoeconomics, innovation and to हो, show a path of peace and भारत prosperity. क्लियरली It is for those एक 5 स्वीट considerations, स्पॉट Prime पर Minister, उपस्थित है। that we are prompted to select साथियों, this theme रिफॉर्म of the Indian era. Over the Perform next 2.5 days, और all ट्रांसफॉर्म of के us मंत्र पर engage in a चलते wide हुए range of subjects हम on how to लगातार enable निर्णय ले रहे for those हैं, daunting challenges. देश को तेज Prime Minister, गति you'll से recall आगे बढ़ा रहे हैं। that 2 years ago, यही we वो had the privilege इम्पैक्ट of है receiving you for the जिसके first कारण Kautilya Economic Conclave. भारत के लोगों The ने theme of that 60 साल बाद conclave was लगातार redefining the तीसरी future. बार किसी सरकार From the को चुना first है। to the third, जब लोगों we का have जीवन redefined बदलता our है future. तब Our लोगों में ये future भरोसा now आता है is a quest कि for a देश Viksit Bharat. सही That is रास्ते the पर future चल रहा है। which between the first and the यही third, भावना which you have now embraced. भारत की जनता We end, के Prime Minister, मैंडेट by में saying दिखती है। That there is an old adage, 140 that करोड़ politics देशवासियों का ये विश्वास is the art of the इस possible. सरकार की But a leadership सबसे बड़ी of a visionary पूंजी है। kind is the art हमारा कमिटमेंट of the है impossible. कि The world भारत is को looking विकसित for बनाने this के लिए enigmatic leadership of yours to लगातार form the impossible, स्ट्रक्चरल to steer रिफॉर्म्स India करते on the रहेंगे। global stage further and to हमारा help ये India commitment realize its quest for a Viksit आप Bharat. हमारे Thank you very third much. term I के had the great privilege of inviting you, Prime Minister. to- पहले 3 महीनों के काम में भी देख सकते हैं। बोल्ड पॉलिसी चेंजेस, जॉब्स और स्किल्स को लेकर मजबूत कमिटमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ और इनोवेशन पर फोकस, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्मला सीतारमण जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और तेज ग्रोथ की कंटिन्यूटी, ये हमारे
पहले 3 महीनों की पॉलिसीज का रिफ्लेक्शन है। इस दौरान 15 ट्रिलियन रुपीस यानी 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के डिसीजंस लिए गए हैं। इन्हीं 3 महीनों में भारत में अनेक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। हमने देश में 12 इंडस्ट्रियल नोड्स बनाने का भी निर्णय लिया है। हमने देश में 3 करोड़ नए घर बनाने को भी मंजूरी दी है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक और नोटेबल फैक्टर है और वो है इंक्लूसिव स्पिरिट। पहले सोचा जाता था कि ग्रोथ होती तो है, इनइक्वालिटी असमानता भी साथ ही बढ़ती है, लेकिन भारत में इसके विपरीत हो रहा है। भारत में ग्रोथ के साथ इंक्लूजन भी हो रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 10 साल में 250 मिलियन यानी करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत की तेज प्रगति के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी कम हो, विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। साथियों, आज भारत की ग्रोथ को लेकर जो भी प्रेडिक्शन हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है कि भारत किस दिशा में है। यह पिछले कुछ हफ्तों और महीनों के आंकड़ों में भी देख सकते हैं। पिछले साल हमारी इकोनॉमी ने हर प्रेडिक्शन से बाहर कहीं बेहतर किया। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मूडीज हो, सभी ने भारत से जुड़े फोरकास्ट को अपग्रेड किया है। ये सारे संस्थान कह रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत 7+ रेट्स के साथ ग्रो करता है। वैसे हम भारतीयों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इससे भी कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स, भारत के इस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ ठोस कारण है। मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस सेक्टर, आज दुनिया भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए पसंदीदा जगह मान रही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि बीते 10 साल में हुए बड़े रिफॉर्म्स का ही नतीजा है। इन रिफॉर्म्स ने भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जैसा एक उदाहरण भारत के बैंकिंग रिफॉर्म्स का है। हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स ने बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन को तो मजबूत किया ही है, उनकी लैंडिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया है। इसी तरह जीएसटी ने अलग अलग सेंट्रल और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंटीग्रेट किया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकवरी और रिजोल्यूशन का नया क्रेडिट कल्चर डेवलप किया है। भारत ने माइनिंग, डिफेंस, स्पेस जैसे अनेक सेक्टर्स को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोला है। हमने एफडीआई पॉलिसी को लिबरलाइज किया ताकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए यहां ज्यादा से ज्यादा अवसर बन सके। हम अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट और टाइम को कम करने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं।
हमने बीते दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट को अभूतपूर्व स्केल पर बढ़ाया है। साथियों, भारत ने प्रोसेस रिफॉर्म्स को सरकार की कंटिन्यूअस एक्टिविटीज का हिस्सा बनाया है। हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म किया। कंपनीज एक्ट को डीक्रिमिनलाइज किया। ऐसे दर्जनों प्रोविजंस थे जिसके कारण पहले बिजनेस मुश्किल था, हमने उनमें बदलाव किया। कंपनी स्टार्ट करने, बंद करने, क्लियरेंस को आसान बनाने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया। अब हम राज्य स्तर पर प्रोसेस रिफॉर्म को गति देने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथियों, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को गति देने के लिए हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लेकर आए हैं। इसका इम्पैक्ट आज बहुत सारे सेक्टर्स में दिख रहा है। अगर मैं बीते 3 साल में ही पीएलआई के इम्पैक्ट की बात करूं तो करीब 1.25 ट्रिलियन यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। इससे करीब 11 ट्रिलियन यानी 11 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। स्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी आज भारत की ग्रोथ शानदार है। इन दोनों सेक्टर्स को ओपन किए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। स्पेस सेक्टर में 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स आ चुके हैं। आज हमारी टोटल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का 20% कंट्रीब्यूशन हमारी प्राइवेट डिफेंस कंपनियों का है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी तो और भी अद्भुत है। 10 साल पहले तक भारत ज्यादातर मोबाइल फोन का बड़ा इंपोर्टर था। आज 330 मिलियन यानी 33 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बन रहे हैं। यानी आप कोई भी सेक्टर देख लें, आज भारत में इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न के बेहतरीन मौके हैं। साथियों, आज भारत का फोकस एआई और सेमीकंडक्टर जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर भी है। इनमें हम काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे एआई मिशन से एआई के क्षेत्र में रिसर्च और स्किल्स दोनों में वृद्धि होगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कारण 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बहुत जल्द ही भारत के 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स दुनिया के कोने कोने में मेड इन इंडिया चिप्स पहुंचाने लगेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत एफोर्डेबल इंटेलेक्चुअल पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। इसकी गवाही दुनिया भर की कंपनियों के 1700 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है जो आज भारत में काम कर रहे हैं। इनमें 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज्यादा भारतीय नौजवान दुनिया को हाईली स्किल्ड सर्विस दे रहे हैं। आज भारत अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड पर अभूतपूर्व रूप से फोकस कर रहा है और इसके लिए एजुकेशन, इनोवेशन, स्किल्स और रिसर्च पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हमने
न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाकर इस क्षेत्र में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। बीते 10 साल में हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी और हर दिन 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। इन 10 सालों में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। और साथियों, क्वांटिटी ही नहीं बल्कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर भी उतना ही बल दे रहे हैं। इसलिए ही बीते 10 साल में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय इंस्टीट्यूशंस की संख्या 3 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस साल के बजट में हमने करोड़ों युवाओं की स्किलिंग और इंटर्नशिप के लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत पहले दिन ही 111 कंपनियों ने पोर्टल पर रजिस्टर किया है। इस स्कीम के तहत हम 1 करोड़ युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप में मदद कर रहे हैं। साथियों, बीते 10 सालों में भारत का रिसर्च आउटपुट और पेटेंट्स भी तेजी से बढ़े हैं। 10 साल से भी कम समय में भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में 81 से 39 स्थान तक पहुंचा है। यहां से हमें और आगे जाना है। अपने रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का रिसर्च फंड भी बनाया है। साथियों, आज ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स के मामले में भी भारत में और भारत से बहुत उम्मीदें हैं और उतनी ही आपके लिए इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आप सभी ने भारत की प्रेसिडेंसी में हुई G20 समिट को फॉलो किया है। इस समिट की अनेक सक्सेस स्टोरी में से एक ग्रीन ट्रांजिशन को लेकर नया उत्साह भी रहा है। G20 समिट के दौरान ही भारत की पहल पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। G20 के सदस्य देशों ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट को मजबूती से समर्थन दिया। भारत में हमने इस दशक के अंत तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। भारत में हम सोलर पावर प्रोडक्शन को भी माइक्रो लेवल पर ले जा रहे हैं। भारत सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम शुरू की। ये रूफटॉप सोलर स्कीम है, लेकिन इसका स्केल बहुत बड़ा है। रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हम हर फैमिली को फंड कर रहे हैं। सोलर इंफ्रा इंस्टॉल करने में भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा फैमिलीज इसमें रजिस्टर हो चुकी है। यानी इतने लोग सोलर पावर प्रोड्यूसर बन चुके हैं। इससे हर फैमिली को ऑन एन एवरेज 25,000 रुपये की बचत होने वाली है। हर 3 किलोवाट सोलर बिजली पैदा करने पर 50 to 60 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी रुकेगा। इस स्कीम से करीब 17 लाख जॉब्स पैदा होगी। स्किल युवाओं की भी एक बड़ी फौज तैयार होगी। यानी आपके लिए भी इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नए मौके बन रहे हैं। साथियों, आज इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से गुजर रही है। मजबूत इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के आधार पर इंडियन इकोनॉमी सस्टेन हाई ग्रोथ के रास्ते पर है।
भारत आज सिर्फ टॉप पर पहुंचने के लिए ही तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि टॉप पर बने रहने के लिए मेहनत कर रहा है। हर सेक्टर में आज दुनिया के अपार अपॉर्चुनिटीज है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपकी चर्चा से अनेक वैल्यूएबल इनपुट्स आएंगे। मैं इस प्रयास को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये हमारे लिए डिबेटिंग क्लब नहीं है। यहाँ जो चर्चाएं होती हैं, जो बातें उभर करके आती हैं, डूज एंड डोंट्स के लिए उसमें से जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हम इसको रिलीजियसली सरकार की सिस्टम में फॉलो करते हैं। हम इसको हमारी पॉलिसी का हिस्सा बनाते हैं, वो हमारे गवर्नेंस का हिस्सा बनाते हैं। और इसलिए आप जो समय दे करके ये मंथन में जुड़ते हैं, वो अमृत हमारे देश में हम हमारे भविष्य को और अधिक उज्जवल बनाने के लिए काम में लेते हैं। और इसलिए आपका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक एक शब्द हमारे लिए मूल्यवान है। आपके विचार, आपका अनुभव, ये हमारी पूंजी है। मैं एक फिर आप सबके इस योगदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस प्रयास के लिए एन.के. सिंह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।